सो लास्ट टाइम हम लोगों ने चारकोल पैनल्स की बात की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैमिनेट्स. Did you find out something about charcoal panels? Ma'am, I was collecting information and data about the assignment you told, but it is not complete. But uh, I guess PVC and charcoal is left. Okay, okay. So laminates करने के बाद we're going to end there, and then I'll give you a space, एक plan जिसमें आप लोगों को wall elevations, wall treatments design करने होंगे. And you can choose any of these materials depending on what you want to design and what you think will be best for it. So laminates करने के बाद you'll start with that. Yes, ma'am. So laminate से आप क्या समझते हो? Have you ever come across any laminate or anything? To any panel which enhances the interior as well as the whenever wherever it is used. ये तो कोई भी टाइप ऑफ पैनलिंग मटेरियल के लिए ट्रू है. But have you actually ever seen laminates? Yes, ma'am. जी कहाँ पे कहाँ देखा है? Ma'am, they can be used in furniture as well as in. Well, I have mostly seen them in furnitures. राइट. इसको लोकल लैंग्वेज में सनमाइका बोलते हैं. बट एक्चुअली सनमाइका इज लाइक मैगी ऑफ इंस्टेंट नूडल्स. मैगी इज नॉट अ प्रोडक्ट टाइप, इट्स अ ब्रांड. वैसे ही सनमाइका इज अ ब्रांड, बट it became synonymous with laminates itself because back then उतना ज़्यादा competition नहीं था in this field. So whenever people say Sanmaika, they usually mean laminates. Laminates are like the artificial versions of veneers. अब veneers क्या होते हैं? Do you know? No, ma'am. Okay, veneers are basically अगर हम timber को, wood को, real wood, hardwood usually उसको slice कर दें बहुत paper thin, almost 3 to 6 mm thin sheets में, तो वो sheets veneers होती हैं. So when you want the finish of maybe oak wood or walnut, but you don't want to actually buy oak wood or walnuts for your paneling or furniture, maybe availability नहीं है, maybe आपका cost project का budget कम है, तो you can use plywood or softwoods even or MDF to construct these panels के base या furniture का base, and then you can apply these veneers जो बहुत ही thin layers हैं real wood की on top of it to give it the look and feel of real wood. So when you touch it, you won't be able to tell कि वो veneer है या वो actual wood का बना है.
but it saves on costs and it also saves on um, wo- workmanship, क्योंकि hardwoods are quite difficult to work with and उसके लिए you need skilled people. So veneers are the easier option to recreate the effect and the feel of real hardwoods जो normally expensive होती हैं. So Yes, ma'am. veneers are made out of natural wood. वो natural product होता है which makes it expensive and it also makes it vulnerable to um, humidity की वजह से corrosion या even temperature changes से cracking. But laminates क्योंकि plastic का product है, it's made out of plastic, so it is quite rough and tough and उसको roughly use कर सकते हैं, पानी से पोंछ सकते हैं. It's easy to maintain and it's quite inexpensive compared to even veneers. But of course जैसा look and जैसा feel veneers में आता है because they are basically made out of real wood, तो वो उससे आपको इवन टैक्टाइल एंड एक्चुअल टेक्सचर जो मिलता है वो रियल वुड का मिलता है. बट लैमिनेट्स बिकॉज दे मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, तो व्हेन यू टच इट यू विल नो दैट इट इज अ लैमिनेट, इट्स नॉट रियल वुड, चाहे वो कितना भी रियलिस्टिक दिखे. So what are laminates? Laminates is basically crafts paper. Crafts paper जो brown paper होता है वो होता है, एंड प्लास्टिक रेजिन, इन दोनों को कंबाइन तब जब किया जाता है तो हमें मिलता है प्लास्टिक लैमिनेट. So plastic laminates or laminates are made out of uh, multiple layers of craft paper bonded together with plastic resin under high heat and high pressure. So ये heat and pressure से bond किए हुए multiple layers of paper, craft paper होता है on which is um, coated with plastic resin. एंड अब प्लास्टिक लैमिनेट्स कई वेराइटी में आते हैं इन डिजाइन, कलर्स, टेक्सचर्स एंड इवन फिनिशेस. ग्लॉसी भी आते हैं, मैट, सैटिन फिनिश, हर तरह के आते हैं, इवन लेदर फिनिश भी आते हैं. सो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ऑफ लैमिनेट्स, दे आर बेसिकली क्राफ्ट पेपर, जो कि जो ब्राउन नॉर्मल पेपर होता है जो हम लोग किसी भी दुकान पे पेपर बैग जो मिलते हैं वो पेपर होता है. एंड देन रेजिन होता है जो कि हम लोग जो रिएक्ट होता है विद एल्डिहाइड, जो कि हम लोग का बॉन्डिंग एजेंट होता है एंड थर्मोसेटिंग प्रोसेस से वो रिएक्ट करता है एंड इट फ्यूजेस विद दैट पेपर फॉर्मिंग अ स्टिफ शीट, जो कि जिसके टॉप लेयर पे हम लोग मेलामाइन रेजिन लगाते हैं एंड जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं दे आर फेल, लेट मी शो यू द, या सो दिस इज इट. इसमें क्या कर रहे हैं कि ये दे आर सेंडिंग रिबन्स ऑफ पेपर थ्रू वैट्स जिसमें फिनोलिक एंड मेलामाइन रेजिन होता है. इस वैट में, वैट इज बेसिकली अ ह्यूज कंटेनर जिसमें फिनोलिक या मेलामाइन रेजिन होता है एंड दिस कोट्स द पेपर विद दिस मटेरियल एंड उसके बाद उसको ड्राइंग चेम्बर में डाल देते हैं. देन दे आर फ्यूज्ड एंड बॉन्डेड विद एल्डिहाइड bonding agent and under high heat and high pressure. So that's when you get laminate sheets.
So to review, पहले हम एक क्राफ्ट पेपर के शीट लेते हैं, फिर उसके पास उसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं विद मेलामाइन या फिनोलिक रेजिन की कोटिंग करते हैं। देन ऐसे ही और लेयर्स बाइंड की जाती हैं एंड उसके ऊपर एक एक डिजाइन पेपर लगाया जाता है विच गिव्स इट दैट डिजाइन, दैट कलर, दैट फिनिश। जो टेक्सचर्स एंड कलर्स का डिजाइन होता है लैमिनेट्स पे, वो पेपर ले किया जाता है उस पे। एंड देन आफ्टर दीज आर ड्राइड, इनको इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर एक प्लास्टिक की रेजिन की शीट लेकर दी जाती है एंड देन दे आर बॉन्ड एंड फ्यूज टुगेदर। देन यू गेट दीज शीट्स। एंड जब ये लैमिनेट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसका जो बैक साइड होता है, इट इज फिनिश्ड बाय सैंडिंग एंड देन यू गेट द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट। बट हाँ, इसमें किसी किसी में जैसे जो लाइट लैमिनेट्स होते हैं, मीनिंग जो थिन लैमिनेट्स होते हैं, उसमें देर इज अनदर लेयर ऑफ बैरियर पेपर, जो हमारे डिजाइन पेपर एंड जो क्राफ्ट पेपर है उसके बीच में एक बैरियर पेपर रखा जाता है एंड दिस इज ओनली सीन इन लाइटर लैमिनेट्स। एंड देन इन जिनमें ग्लॉसी फिनिश दिया जाता है, उसमें यू गेट क्राफ्ट पेपर, फिर यू हैव बैरियर पेपर, देन यू हैव डिजाइन पेपर, और उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वो ले किया जाता है। एंड दिस इज व्हाट इट गिव्स द ग्लॉसी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिव फिनिश। एंड देन इनको फ्यूज करके बाकी जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। Yes, ma'am. बट देन जो मेटालिक फिनिश वाले लैमिनेट्स होते हैं, उसमें टिश्यू पेपर नहीं होता है, बिकॉज देन यू डोंट वांट दैट प्लास्टिक लाइक ऑलमोस्ट ग्लॉसी फिनिश इन मेटालिक लैमिनेट्स, यू वांट अ काइंड ऑफ डल फिनिश। सो उसमें टिश्यू पेपर नहीं यूज होता है। एंड जो थोड़े थिक 1 mm या 0.8 mm वाले लैमिनेट्स होते हैं, उसमें बैरियर पेपर नहीं यूज होता है, बिकॉज वो अपने आप में ही इतने थिक होते हैं दैट दे डोंट नीड अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द पेपर फ्रॉम एनी मॉइस्चर और एनीथिंग। Yes, ma'am. Then what are the different types of laminates? Mostly सारे लैमिनेट्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स। एक हाई प्रेशर लैमिनेट्स होते हैं एंड एक लो प्रेशर लैमिनेट्स होते हैं। एंड उसमें और डिफरेंट टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं। इट्स लाइक there are decorative laminates, industrial compact laminates, and then there are high pressure and low pressure। and decorative industrial compact, वो इनमें से कोई भी या तो हाई प्रेशर प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं या लो प्रेशर प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेकोरेटिव लैमिनेट्स। डेकोरेटिव लैमिनेट्स में हाई एस्थेटिक अपील होती है। uh, and in it provides a lot of finishes and a lot of patterns। एंड ये जो फर्नीचर में ऑर्नामेंटल ओवरलेस होते हैं, जैसे अलमीरास में या टेबल्स में या जो भी है, उसके लिए ये लैमिनेट्स यूज होते हैं। एंड लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द
uh, एक होता है लैमिनेटेड प्लाईवुड, मतलब हम डेकोरेटिव लैमिनेट को प्लाईवुड पे ही लगा देते हैं, देन वो उसे एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं. सो व्हेन यू वांट टू क्रिएट मॉड्यूलर किचन और समथिंग लाइक दैट, to make the whole process easy, what you can do is instead of buying plywood अलग से and laminates अलग से, you can just get laminated plywood and make your cabinet doors and stuff out of it. So उससे, because वो factory में इंडस्ट्रियल सेटिंग में उसको फ्यूज किया जाता है विद प्लाईवुड, तो उसकी बॉन्डिंग इज मच बेटर देन दैट ऑफ दैट यू गेट फ्रॉम ऑन साइट बॉन्डिंग. एंड बिकॉज किचन में टेम्परेचर वेरिएशंस काफ़ी होते हैं, इवन ह्यूमिडिटी में वेरिएशन ज़्यादा होता है, तो इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ एंड मोर ड्यूरेबिलिटी. देन these are all finishes, almost wood like finish, timber finish. This is craft paper. Anyways, okay, so right. Then industrial laminates are obviously industrial grade laminates, जिसमें आपको ज़्यादा strength मिलती है and they are more resistant to wear and tear. And इसमें high performance laminates यूज़ किए जाते हैं जो कि फायर रिटार्डेंट होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं एंड केमिकली रेजिस्टेंट होते हैं. एंड दिस इज यूज्ड इन hospitals and other industries जहाँ पे you'll have exposure to all these things, you have exposure to chemicals and even um, in case of fire you should use industrial laminates. Then you have compact laminates. Yeah, compact laminates are um, uh, contrary to the name, compact laminates are actually quite thick. उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एंड दे आर सेल्फ सपोर्टिंग. सो उसका पर्पस ये होता है कि जैसे हमें पैनलिंग क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू जस्ट क्रिएट अ फ्रेमवर्क और उस पर आप कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स लगा सकते हो. यू डोंट नीड अ प्लाईवुड बैकिंग. अदरवाइज नॉर्मली जो जैसे डेकोरेटिव लैमिनेट्स होते हैं, दे ऑलवेज नीड अ बैकिंग, अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ प्लाईवुड टू बी यूज बिहाइंड इट, अदरवाइज वो आप नहीं अप्लाई कर सकते वॉल पैनलिंग में. सो
Compact laminates are fairly thick and they are self-supporting, and they do not need to be glued to any other material. Now, next are metallic laminates. Metallic laminates. Let me show you metallics. जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वैसे ही होते हैं metallic laminates. They have a metallic finish to them. That's all. Uh, this is what they look like. These are metallic laminates. इसमें almost metal like finish होती है and they're not glossy. That's why इस पे tissue paper नहीं लगाया जाता है इसकी production Yes, ma'am. में. Then we have edging laminates. Edging laminates जैसे कि नाम से पता चल रहा है they are used in edges. Like जैसे हम जो laminate sheets लेते हैं वो तो बहुत बड़ी sheets होती हैं. We never cut them and use in edges क्योंकि वो क्या करते हैं कि they are very thick sheets and they don't bend well. एंड अगर हम उस पे स्कोरिंग करेंगे या हाफ कट लगाएंगे तो खराब होने लगता है उस कॉर्नर से एंड वो कॉर्नर्स काफी शार्प हो जाते हैं. सो दिस ये जो कि एजेस पे यूज होते हैं. सरफेस पे लैमिनेट लगा है. दिस कुड बी अ टिम्बर और अ डेकोरेटिव लैमिनेट एंड ये जो एजिंग की गई है उस एज को कैन यू सी जो एज है इसकी वो एजिंग लैमिनेट होता है. Yes, ma'am. सो इट्स डू यू नो जो फ्लोरिंग में हम लोगों ने लैमिनेट्स पढ़े थे. वी हैड विनाइल फ्लोरिंग एंड लैमिनेट फ्लोरिंग. वो लैमिनेट्स जो होते हैं दे हैव अ स्टिकी अधीसिव नहीं दे डोंट हैव अ हाँ दे हैव एन अधीसिव बैकिंग एंड दे ऑलमोस्ट लुक लाइक वुड फिनिश मार्बल फिनिश जिस भी फिनिश में चाहिए हो. दैट Yes, इज ma'am. दैट कैन बी यूज्ड एज एन एजिंग. that that's what this is. Then high pressure laminates. High pressure laminates are basically वो
सनमाइका या फॉर्मिका इस टाइप के ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दे आर बेसिकली डेकोरेटिव लैमिनेट्स जो कि नॉर्मली प्लाईवुड के ऊपर फिक्स किए जाते हैं। देन लो प्रेशर लैमिनेट्स वो होते हैं जो जिसमें सिर्फ जो डेकोरेटिव पेपर होता है, जो डिजाइन पेपर होता है, सिर्फ वो मेलामाइन रेजिन में डिप किया जाता है, एंड जो क्राफ्ट पेपर है वो डायरेक्टली पार्टिकल बोर्ड या फाइबर बोर्ड पे स्टिक कर दिया जाता है। मीनिंग it obviously does, it's not as strong, it's not as resistant to moisture or temperature, and uh, that is the only difference. It's basically high quality and low quality. So after this, let's come to properties. Laminates are strong. Laminate is a strong material, and even depending on किस टाइप का है, whether it is high pressure or it is low pressure. And when I said high pressure, low pressure, कोई भी हो सकता है, मतलब even decorative laminates can be made, हाई प्रेशर हो सकते हैं या लो, मीनिंग हाई क्वालिटी हो सकते हैं, लो क्वालिटी हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स आर जनरली हाई प्रेशर लैमिनेट्स, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट कि वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनकी थिकनेस ज्यादा होती है। तो लो प्रेशर लैमिनेट्स विल नॉट वर्क एज कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स। Then metallic edging industrial, and industrial again are always high pressure laminates. So high pressure and low pressure एक kind of construction है, and वो उस process से इनमें से कोई भी बनाया जा सकता है। So laminates are strong in itself, and they provide stability to plywood or anything, क्योंकि plywood या कोई भी wood manufactured product जिसे हम लोग furniture बनाते हैं या paneling करते हैं, it needs additional stability and protection, meaning you have to paint it or finish it with some material, otherwise उस पे humidity and moisture का effect से it starts getting damaged. So laminates provide stability क्योंकि वो inherently, because वो plastic resin का material है, it's water retardant and it doesn't crack. Then it also provides sound insulation, एंड किसी भी टाइप की अपीयरेंस आप ले सकते। सी इस इमेज में ये जो सैंपल्स रखे हुए हैं, दीज आर क्वाइट थिक, राइट? सो ये है कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स। ओके, आई गॉट डिस्ट्रैक्ट। सो दे प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ अपीयरेंस, आपको कोई भी टाइप ऑफ वुड चाहिए, एंड इवन दे लैमिनेट्स में तो अब ऐसे भी वुडन टेक्सचर्स आने लगे हैं जो नेचुरल वुड के होते भी नहीं है। So you get all sorts of designs, marble, solid colors, leather finish, all sorts of designs, floral designs, जो भी finish चाहिए। So you can achieve any kind of appearance you want in your design. Then they're also permanent material, जैसे कि आपको laminates एक बार आपने लगवा लिया, unless you intentionally keep damaging laminates, वो easily खराब नहीं होते हैं। I still have furniture in my house which is older than I am, and it's still perfectly fine, and it has laminates on it, and it's not stained. उसके finish नहीं खराब हुई है, उसकी polish नहीं खराब हुई है, and it's in perfect condition. It's not chipped or cracked. So आप अगर laminate planning paneling कराते हो या furniture पे लगाते हो, तो you get some kind of permanency with it.
Yes, ma'am. Then some other properties of plastic laminates are that they are stain and grease resistant. मतलब because वो प्लास्टिक का होता है तो उस पे दाग नहीं लगता है इजीली. एंड देयर अच्छा लाइट कलर के जो रफ फिनिश वाले लैमिनेट्स होते हैं दे कैन गेट स्क्रैच्ड अगर रिपीटेडली उस पे कुछ रफ यूज हो रहा है तो. बट अदरवाइज दे आर क्वाइट स्टर्डी एंड देर ऑल्सो ग्रीस रेजिस्टेंट. इसलिए उन्हें किचन में इतना फ्रीली यूज किया जाता है बिकॉज किचन में क्या होता है इवन इफ यू हैव अ चिमनी कुछ कुछ ग्रीस स्टिल sticks to the cabinets, some surfaces. तो grease एक तो resistant होता है मतलब it doesn't get damaged. And if अगर grease build up हो जाता है तो you can just wipe it and even wash it with a mild soap, and it is durable if it is properly cared for. And you can form shapes with plastic laminates. मतलब आप लाइक वो क्योंकि स्टिफ शीट्स होती हैं तो यू कैन कट देम इनटू एनी शेप एंड इट विल स्टे पुट. जैसे प्लाई के एजेस रफ हो जाती हैं उससे जब हम कट करते हैं तो यू नीड टू फिनिश द एजेस. पर लैमिनेट क्योंकि बहुत पतला होता है एंड इट्स वेरी स्टर्डी तो यू कैन जस्ट कट इट इनटू एनी शेप यू वांट. सो उसमें पैटर्न्स क्रिएट करना इजी हो जाता है एंड फॉल सीलिंग के डिजाइन क्रिएट करना इजी हो जाता है. देन प्लास्टिक लैमिनेट is less expensive than its counterparts like veneer से natural wood से सस्ता होता है. And where appearance is important so you can get variety of colors. And they are it's a quieter, it's a quiet material. जैसे अगर हम मेटल की फिनिशिंग देते हैं हम जैसे हमें मेटालिक लैमिनेट यूज करें या हम उसकी जगह एक्चुअल स्टेनलेस स्टील यूज करें तो जैसे हम स्टेनलेस स्टील का कुछ फॉर एग्जाम्पल वार्डरोब है या पैनलिंग है एंड आई वांट टू क्रिएट अ मेटालिक फिनिश ऑन इट, अगर हम एक्चुअल मेटल यूज करते हैं तो इट विल बी नॉइजी. अगर उस पे फर्नीचर टकराता है या कुछ होता है तो इट विल मेक्स दैट मेटालिक नॉइज. पर लैमिनेट्स क्योंकि प्लास्टिक होता है इट जस्ट लुक्स लाइक मेटल तो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी क्वाइट मटेरियल तो पैनलिंग में आवाज नहीं होती है. एंड इट्स ऑल्सो साउंड इंसुलेटिंग so it's all again good for paneling. Then ये तो advantages हुए. Then there are also some demerits to using plastic laminates जैसे कि अगर cracking या chipping होती है laminates की तो it creates a very sharp edge जिससे चोट लग सकती है. And अगर अच्छी हाई क्वालिटी का लैमिनेट नहीं लिया है तो उसका सरफेस खराब फेड हो सकता है, उसकी पॉलिश छूट सकती है एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग पुअर. देन एंड अगर देन अगेन अगर सही क्वालिटी का नहीं लिया है तो उसकी जो लेयर्स हैं वो डी बॉन्ड होने लग सकती हैं एंड वो लेयर्स आपको दिखने लग सकती हैं. देन अगर सही से अप्लाई नहीं किया गया है तो हाई टेम्परेचर चेंजेस से उसमें बबल्स फॉर्म हो सकते हैं एंड इट कैन क्रैक. एंड इसको एक्सटीरियर में नहीं यूज कर सकते बिकॉज बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस से ये बहुत इजीली क्रैक हो जाता है, बहुत ब्रिटल हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स फेडिंग. सो इट कैन ओनली बी यूज्ड इन इंटीरियर्स. जैसे WPC है, जिप्सम है, आप इसे एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में यूज कर सकते हो. वेल नॉट जिप्सम क्योंकि इट्स नॉट वाटर रेजिस्टेंट. बट हाँ WPC यू कैन यूज इन एक्सटीरियर्स बट लैमिनेट को आप बाहर नहीं यूज कर सकते हो. एंड अगर
से एक्सपोजर होता है लैमिनेट्स का, तो इट विल गेट डैमेज्ड वेरी क्विकली। एंड अगर आपका जो पैनलिंग है या फर्नीचर है, उसके सरफेस के बीनीथ लाइक प्लाईवुड या जो भी एमडीएफ जिसके ऊपर भी लैमिनेट लगाया है, उसमें अगर मॉइस्चर आने लगता है समहाउ, तो लैमिनेट की जो अधीसिव है प्रॉपर्टी है टू दैट प्लाईवुड, इट विल स्टार्ट कमिंग ऑफ, तो वो छूटने लगेगा। दैट्स वाई इसको जहाँ पे डैम्पनेस हो वॉल में या सीलिंग में, वहां पे नहीं यूज करते हैं, बिकॉज प्लाई में अगर गलती से भी डैम्पनेस आ गया तो लैमिनेट छूट जाएगा ना, आपकी पैनलिंग खराब हो जाएगी। Ma'am, देन लेट्स कम टू, हाँ चेतना। ma'am, how can we decide that what kind of laminate to use where? मोस्टली हम लोग डेकोरेटिव लैमिनेट्स ही देखते हैं जहाँ भी देखते हैं। एंड देयर अगर आप किसी भी जैसे रॉयल टच या एक्चुअली इट्स टूशे, I don't know why everyone calls it royal touch, it's touche. So आप green lamp and सनमाइका, ये जो हाई क्वालिटी ब्रांडेड लैमिनेट्स होते हैं, वो आप लेते हो तो they're all डेकोरेटिव लैमिनेट्स जो आप नॉर्मली देखते हो। एंड इफ यू वांट सम, एंड उसमें भी उसी सेम कैटलॉग में यू विल गेट ऑल दीज फिनिशेस। सो व्हाट काइंड ऑफ लैमिनेट यू वांटेड टू आस्क, कि ये जितने हाई लो इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट ये सब पड़े, उसमें से कौन सा चूज करेंगे या फिर फिनिश कैसी चूज करेंगे? Ma'am, I am हम्म, asking for that high-low one, like the ओके। metallic one, and there are the differences. So, where to use what kind of laminate? सी जैसे इफ यू वांट अ काइंड ऑफ पैनलिंग जिसमें आपको आपको डायरेक्टली वॉल पे या बहुत क्लोज टू वॉल आपको लैमिनेट प्लानिंग पैनलिंग देनी है, तो यू कैन यूज कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स। एंड अगर आपको ऐसी किसी स्पेस में यूज करना है जहाँ पे वो मॉइस्चर एक्सपोजर ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, एंड देयर इज अ फायर हैजर्ड लाइक किचन में, वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल लेवल भी यूज कर सकते हो। देन अगर आपको नॉर्मल वार्डरोब फर्नीचर या लिविंग रूम बेडरूम के फिनिश में यूज करना है, तो यू कैन जस्ट यूज डेकोरेटिव लैमिनेट्स जो कि बहुत सारे फिनिशेस में आते हैं। एंड देन मेटालिक, जहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश चाहिए वहां पे मेटालिक यूज कर लोगे। Yes, ma'am. जैसे कॉम्पैक्ट लैमिनेट कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर आपको जैसे पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, टेम्पररी पार्टीशंस, या जैसे ऑफिस में पार्टीशंस होते हैं क्यूबिकल्स में, वहां पे आप कॉम्पैक्ट लैमिनेट यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट इट इट लुक्स लाइक। ऐसी अलग अलग थिकनेस वाले एंड इवन एज फिनिश वाले कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स आते हैं। दे आर बेसिकली, सी ये कंस्ट्रक्शन होता है उसका, यू हैव ऑल दीज क्राफ्ट पेपर लेयर्स, राइट, मल्टीपल क्राफ्ट पेपर लेयर्स, एंड देन यू हैव जो कि फिनोलिक रेजिन या मेलामाइन रेजिन से ड्रेंच होती हैं उसमें। एंड देन यू हैव दिस डिजाइन पेपर या जो भी प्रिंटेड पेपर होता है विच इज कोटेड विद मेलामाइन रेजिन। फिर टिश्यू ओवरले होता है, एंड जो कि मेलामाइन रेजिन में डिप्ड होता है, एंड देन यू हैव दिस
प्लास्टिक रेजिन का टॉप लेयर। एंड इसमें जितनी लेयर्स होती हैं वो नॉर्मल लैमिनेट से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए इसकी थिकनेस इतनी होती है, या इवन उससे ज्यादा थिक लैमिनेट्स भी मिलते हैं। देर क्वाइट एक्सपेंसिव, पर अगर जैसे आपको पार्टीशंस क्रिएट करने हैं तो दिस विल बी अ लिटिल चीपर एज कंपेयर टू बाइंग गेटिंग यू नो प्लाईवुड का पार्टीशन मेड, फिर उसके ऊपर लैमिनेट चिपकवाना, ये सब। तो इट्स फार इजियर टू जस्ट यूज दीज कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स। तो वहां पे यू कैन यूज दीज, यू कैन इवन यूज देम इन फर्नीचर डायरेक्टली। जैसे आपको शेल्स या बुक शेल्स या टेबल्स क्रिएट करनी है तो यू कैन जस्ट यूज दिस। बट अगर आपको किसी और फर्नीचर पे आपको किसी सर्टेन डिजाइन में बनाना है, सपोज जैसे ये आप लोगे, ये तो आपको पूरी बड़ी शीट मिलेगी 8 फीट बाय 4 फीट की, ऐसी ही बॉन्डेड शीट। पर सपोज हमें फर्नीचर डिजाइन करना है इस टाइप का, जिसमें हमें मल्टीपल फिनिशेस चाहिए, डिजाइन क्रिएट करनी है, इन मेटल का इनले देना है, तो उसमें वी कैन नॉट यूज कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्डेड है। तो यू विल क्रिएट अ फर्नीचर विद प्लाईवुड और समथिंग, एमडीएफ प्लाईवुड वट एवर, एंड उस पे आप लैमिनेट अलग अलग डिजाइन का लेके अपने डिजायर्ड फिनिश में, डिजायर्ड तरीके से लगा दोगे। जैसे इसमें आप ये डिजाइन, ये तो वुड है बट ये डिजाइन लैमिनेट है, ये सब डिजाइन लैमिनेट्स हैं, राइट? Yes, ma'am. सो कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स सीम नाइसर, बट जहाँ पे आपको एकदम होमोजेनस डिजाइन चाहिए तो आप या तो आप अलग अलग, जैसे शेल्स चाहिए तो आप अलग अलग लैमिनेट्स के बोर्ड्स खरीदो, फिर यू कट देम अप। सो इफ यू वांट अ होमोजेनस फिनिश तो यू कैन यूज कॉम्पैक्ट दीज लैमिनेट्स। या आपको डिजाइन ऐसे इस टाइप की बनानी है कुछ, तो यू नीड लैमिनेट, डिजाइन लैमिनेट। एंड उसमें भी इफ यू वांट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो यू शुड गो फॉर हाई प्रेशर लैमिनेट्स। लो प्रेशर वाले जो फर्नीचर आते हैं अगर बने हुए आप लो, तो वो जैसे 900 की एक छोटी साइड टेबल मिल जाएगी, बहुत बहुत चीप होता है वो, एंड उसका क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो क्रैक होने लगेगा। आप सपोज आपने टेबल पे लगाया तो, एंड आपने उस पर कोई गरम प्लेट रख दी तो इट विल क्रैक वहां से। Ma'am, the compact ओके। laminates, हम्म। हम्म। they require frames or something to get fixed, or नो, कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स को आप डायरेक्टली लगा सकते हो। कहाँ पे फिक्स करने के लिए? वेट, कहाँ पे? वॉल पे फिक्स करने के लिए? yes, ma'am. ओके। वॉल पे फिक्स करने के लिए ऐसे एक मेटल का फ्रेम क्रिएट किया जाता है।
जैसे जिप्सम का फ्रेम बनता है, ऐसे एक फ्रेम बनता है मेटल का। जहां जहाँ पे भी आपको लैमिनेट लगवाना है वहां पे फ्रेम लगता है। एंड इफ यू आर यूजिंग डिजाइन लैमिनेट तो एक प्लाईवुड का पूरा बेस बनाया जाता है एंड देन यू स्टिक लैमिनेट ऑन टॉप ऑफ इट। पर अगर आप कॉम्पैक्ट लैमिनेट यूज कर रहे हो तो यू विल जस्ट नीड दैट मेटल फ्रेम। जाल बिछाया जाता है उतने एरिया पे एंड सिर्फ वो डायरेक्टली वो मेटल के फ्रेम, जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है वैसे ही उस फ्रेम पे स्क्रू कर दिया जाता है उस कॉम्पैक्ट लैमिनेट को। Hold. I'm trying to find a sectional detail of uh, okay. सी जैसे इस इमेज में है, यू कैन सी कि ये तो टेराकोटा पैनल की पैनलिंग दिखाई है, बट इफ यू कैन सी यहाँ पे रेल्स लगाए गए हैं, मेटल के फ्रेम एक बनाया गया है पूरे वॉल पे, जो वॉल पे स्क्रूज से फिक्स किया जाता है। एंड देन इसके ऊपर या तो प्लाईवुड एंड डिजाइन लैमिनेट लगा सकते हैं या डायरेक्टली कॉम्पैक्ट लैमिनेट इस फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसे किया जाता है। Yes, ma'am. हम्म। Why are all these details always? सी इसमें आपको दिखेगा, इसमें तो उन्होंने बहुत डेप्थ दी है। सी यहाँ तो इन्होंने बहुत डेप्थ दी है, पर जरूरी नहीं है, वो दैट डिपेंड्स ऑन यू। सपोज आपको मे बी प्रोफाइल लाइटिंग देनी है, बैकलिट पैनल लगाना है या कुछ है, आपको लेवल्स क्रिएट करने हैं, तो यू माइट क्रिएट डेप्थ विद दिस। अदरवाइज ये वर्टिकल रेल्स है वो डायरेक्टली दीवार पे लगा दिए जाते हैं, देन उनके ऊपर इस तरह से पैनल्स फिक्स कर दिए जाते हैं। Yes, ma'am. सो इसमें लैमिनेट्स में आपको कई क्वालिटीज मिलती हैं एंड कई ग्रेड्स एंड थिकनेसेस एंड साइज मिलते हैं। सो जो सबसे पतला लैमिनेट होता है, पॉइंट जैसे 0.6 mm, 0.7 mm वाले जो लैमिनेट्स होते हैं, दे आर इंस्टॉल्ड ऑन वर्टिकल सर्फेसिस जो कि पानी या मॉइस्चर को एक्सपोज नहीं होंगे एंड उस पे ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी थिन। तो यू वांट देम टू इंस्टॉल इन प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, उन्हें इजिली डैमेज नहीं होंगे। देन जो थोड़े थिक होते हैं, 0.8 1 mm वाले जो ग्रेड्स होते हैं लैमिनेट्स के, वो हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस पे यूज होते हैं एंड दे कैन बी बेंट और इवन कर्व्ड।
मतलब अगर हमें कर्व सरफेस पे या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगाना है तो वी यूज थिकर लैमिनेट्स, क्योंकि सी वर्टिकल सरफेस पे जो सबसे ज्यादा वेर एंड टेयर होगा वो टकराने से, स्क्रैच में भी आएगा। बट हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस कौन से होते हैं? देर यूजली टेबल्स या ऐसे वर्किंग सर्फेसिस या ड्रेसर्स या ऐसे बेड्स, जो भी इस टाइप के सर्फेसिस होते हैं जहाँ पे डेली लोग काम करेंगे एंड दे आर एक्सपोज टू मच मोर वेयर एंड टेयर, वहां पे हम लोग थोड़े थिक 0.8 या 1 mm वाले लैमिनेट्स यूज करते हैं। एंड जो एवरेज थिकनेस वाले होते हैं वो वो उन जगह पे यूज हो सकते हैं जहाँ पे, जैसे आपको कोई कर्वी लीनियर चेयर पे लैमिनेट लगाना है तो वहां पे आप जैसे 0.8 या 0.7 mm यूज कर सकते हो। 1 mm थोड़ा ज्यादा थिक हो जाता है, वो उतना इजिली बेंड होके रखता नहीं है। सो ऐसी चीजें जहाँ पे हम जैसे एक टर्म यू विल कम अक्रॉस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लैमिनेट्स और समथिंग, वो होता है पोस्ट फॉर्मिंग। पोस्ट फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जैसे पोस्ट फॉर्मिंग या पोस्ट फॉर्म लैमिनेट जो होता है उसको हम लोग थोड़ा, प्रोसेस जो होता है कंस्ट्रक्शन का थोड़ा डिफरेंट होता है। वो स्पेशली क्रिएट किया जाता है सो दैट वो बेंड होके अपनी फॉर्म मेंटेन कर पाए, ऑफ कोर्स नॉट बाय इटसेल्फ बाय स्टिकिंग इट टू अ बैकिंग, बट हाँ वो उचड़ नहीं जाए, वो बना रहे। सो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। एंड जो ट्रेडिशनल लैमिनेट्स, आप जो डिजाइन लैमिनेट्स देखते होंगे, वो देखे होंगे, वो थोड़े स्टिफ होते हैं एंड दे आर नॉट वेरी इजीली बेंट। सो पोस्ट फॉर्म लैमिनेट्स ये होते हैं क्यों, जिनको आप फॉर्म जो देते हो, शेप देते हो, वो उनके फॉर्मेशन के बाद देते हो, इसलिए दर कॉल्ड पोस्ट फॉर्म लैमिनेट्स। इसको बनाने में सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि जैसे हम लोगों ने अभी तक जो प्रोसेस देखा उसमें हम इंडिविजुअल शीट्स को सोक कर रहे थे पॉली मेलामाइन रेजिन या जो भी है उसमें, एंड देन उनको बॉन्ड कर रहे थे, फ्यूज कर रहे थे। बट पोस्ट फॉर्म लैमिनेट क्या होता है कि एक बार वो फ्यूज कर दिए जाते हैं लेयर्स और उसके बाद उसे सोक किया जाता है किसी भी रेजिन में। सो पोस्ट फॉर्म इसलिए भी उसे कहते हैं कि वो बन फ्यूज होने के बाद उसको डिप किया गया है रेजिन में। एंड देन जब वो ड्राई हो जाता है, क्योर हो जाता है, फॉर्म हो जाती है लैमिनेट की शीट, उसके बाद उसे थोड़ा हीट किया जाता है सो दैट जो उस पे रेजिन की लेयर फॉर्म हुई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उससे उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो नॉर्मल आपको डेकोरेटिव लैमिनेट्स में नहीं मिलती। Yes, ma'am. एंड जो साइज होता है वो नॉर्मली प्लाईवुड के साइज का आता है। जैसे प्लाई का साइज प्लाईवुड शीट्स का 8 फीट बाय 4 फीट होता है एंड 10 फीट बाय 4 फीट होता है। सेम लैमिनेट्स का साइज होता है। दैट्स बिकॉज डिजाइन में इजी हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर हमने 8 बाय 4 की प्लाई ले ली पर हमें लैमिनेट्स को कट करके लगाना पड़ेगा। यू गेट सेम साइज का लैमिनेट, सेम साइज का प्लाईवुड, सो दैट आपको डिजाइन में या कुछ भी बनाने में, सपोज हमें 8 फीट की ही टेबल बनानी है, तो हम अब अगर हमारा लैमिनेट का साइज छोटा होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें जॉइंट दिखेगा उसमें। इसलिए फॉर यूनिफॉर्मिटी उसका साइज सेम रखा जाता है एज प्लाईवुड। These are some of the applications। ये पूरा डिफरेंट
कलर्स ऑफ प्लाईवुड सॉरी लैमिनेट्स यूज किए गए हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स जो मिलते हैं. एंड एज यू कैन सी वो कई अलग अलग वेराइटीज में भी मिलते हैं एंड कई डिजाइन में भी मिलते हैं. यू इवन गेट इमिटेशन ऑफ 3D ग्राफिक्स, लाइक उस पे जो प्रिंट होता है वो इल्यूजन क्रिएट करता है ऑफ 3D इफेक्ट्स. वो भी लैमिनेट्स आने लगे हैं. सो this was the end of almost all your paneling materials. Yes, ma'am. Now आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि this is a bedroom, right? um, Yes, ma'am. 3.6 meters by 2.7 meters का बेडरूम है. It has one door, it has one window. बेड का प्लेसमेंट आपको पता है एंड अलमीरा का प्लेसमेंट पता है. And now you have to design wall treatments for this. And brief ये है कि this is a bedroom in the residence of a young couple. Like so उससे आपको एक डिजाइन का हिंट मिलेगा कि what kind of design you want to go with. फॉर एग्जाम्पल अगर किड्स बेडरूम होता तो आप थोड़ा प्लेफुल डिजाइन करते. अगर एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स रूम होता तो आप उसमें थोड़ा सोबर डिजाइन्स करते. बट इट्स फॉर अ यंग कपल, सो डिजाइन अकॉर्डिंगली. एंड यू हैव टू पहले तो लाइक आई ऑलवेज आस्क यू गाइस टू डू, आप कॉन्सेप्ट शीट बनाओगे जिसमें यूल वो आपका मूड बोर्ड जैसा, मूड बोर्ड प्लस कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो आइडिया है, जस्ट एक्सप्लेन योर आइडिया टू मी एंड ऑलवेज हैव अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. मतलब वो कोहेसिव होना चाहिए एंड उस यूनिफाइड होना चाहिए. एंड उसकी यूनिफाइंग फैक्टर क्या है, तो फाइंड दैट कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड यू मेक अ कॉन्सेप्ट शीट जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या मटेरियल चूज किया, क्या कलर स्कीम है, कौन सा फिनिश है, एंड उसमें क्या डिटेल्स दोगे या क्या पैटर्न्स होंगे. वट एवर योर आइडिया इज. आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल क्योंकि आई डोंट वांट टू लिमिट योर क्रिएटिविटी. सो एक तो कॉन्सेप्ट शीट होगी, देन चारों वॉल्स के एलिवेशंस होंगे विद डिटेल्स. जैसे आप एलिवेशंस बनाते हो, सेक्शनल एलिवेशंस मतलब जो आप वॉल के बिल्कुल पास से एक सेक्शन कट करते हो जहां आपको दोनों साइड वाली वॉल्स कट होती हुई दिखेंगी, स्लैब कट होता हुआ दिखेगा एंड आपका वॉल का एलिवेशन प्रॉपर दिखेगा कि क्या हो रहा है उसमें. एंड विद डायमेंशंस, बिकॉज अगर आप कुछ डिजाइन बना रहे हो तो उस पर भी आपको प्रॉपर डायमेंशंस देने होंगे. Yes, ma'am. एंड इफ यू हैव एनी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आप मेटल का इनले दे रहे हो या कुछ लाइट से डिजाइन दे रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसका भी आपको डिटेल लाइक जैसे भी शो ब्लो अप डिटेल्स कि इस पोर्शन का डिटेल ये है, वो भी शो करो इफ इट अप्लाइज टू योर डिजाइन. Yes, ma'am. Okay, so this is your bedroom. If you want, you can take a screenshot. Otherwise, ये वीडियो तो होगा ही यूट्यूब पे. एंड स्टार्ट डूइंग इट अभी. आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सोचना शुरू करो. व्हाट विल बी द योर कॉन्सेप्ट एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कॉन्सेप्ट जिसे आप चाहो तो एक या दो वर्ड में डिस्क्राइब कर सको, लाइक अ कैप्शन, because that is the best way to achieve cohesiveness आपके डिजाइन में, so that you have one word or one idea कि this is the end result I want. एंड उससे आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या फिनिश चाहिए, क्या मटेरियल, क्या डिजाइन, क्या पैटर्न्स चाहिए. लाइक बोहेमियन में आप कलर कलरफुल डिजाइन्स यूज करोगे, आपका पैटर्न्स डिफाइन हो जाएंगे, आपके मटेरियल्स डिफाइन हो जाएंगे. लाइक यू विल गो फॉर मोर ऑर्गेनिक लुकिंग मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम uh, कुछ एंटीक स्टाइल में जाते हैं तो यू विल नो कि हमें क्या करना है. सो ट्राई टू फाइंड दैट कोहेसिवनेस एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट.
Ma'am, Yes, Chetna? ma'am, basically we have to use all the paneling materials which we have studied so far in this bedroom. But don't use all of them in this one bedroom. उसमें से कोई बेस्ट चूज करो जो आपको लगेगा आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे सूटेबल होगा. Yes, ma'am.
So Chetna, did you think of something? Ma'am, probably I'm thinking for WPC, but still confused a bit. Ma'am, are they available? What are the forms that are available? WPC के Yes, ma'am. WPC को तो पैनल्स की तरह भी मिलता है, फ्लोटेड शीट्स में भी मिलता है. Ma'am, they could be customized or something, or they are only available on, matlab ki like that, straight rows, columns. Sorry. नहीं नहीं, यू कैन फाइंड देम इन, जैसे लैमिनेट्स में वुडन फिनिश होती है, प्लेन सॉलिड फिनिश होती है, उस तरह के फिनिशेस भी मिलते हैं. यू कैन फाइंड कैटलॉग्स और WPC जो कंपनीज देती हैं, जो सेल करती हैं. फाइंड अ ब्रांड, फाइंड अ गुड ब्रांड WPC का, Yes, एंड ma'am. उनका कैटलॉग एक बार देखो. Yes, ma'am. सी दिस इज व्हाट आई आस्क्ड यू गाइस टू डू ऑनलाइन सर्वे में. दिस इज व्हाट यू नीडेड टू सी कि सारे मटेरियल्स में क्या हमारे मार्केट में अवेलेबल है, एंड मेक श्योर जो आप सर्च करो इट्स इन इंडिया, राइट? Yes, ma'am. क्योंकि बाहर देर आर मटेरियल्स अवेलेबल जो मे बी यहाँ ना अवेलेबल हो, या मे बी यहाँ जो अवेलेबल है वो वहाँ ना अवेलेबल हो. Yes, ma'am. तो एंड यू कैन ऑल्सो हैव two different materials की wall paneling if you want different kind of finishes दोनों किसी और वॉल पे. मे बी आप एक एक्सेंट वॉल पे कुछ और क्रिएट करना चाह रहे हो, बाकी कुछ और करना चाह रहे हो, तो यू कैन डू दैट. Yes, बस ma'am. वो ऑड नहीं लगना चाहिए. Yes, ma'am. ठीक है, तो बिफोर थिंकिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट आप यही करो कि सबसे पहले उसके पहले जो असाइनमेंट था वो करो. जितने भी मटेरियल्स हैं उनके ब्रांड्स ढूंढो, एंड देन लुक फॉर देयर कैटलॉग्स एंड सी कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है. तो मे बी you'll फाइंड सम ब्यूटीफुल फिनिश जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है. Yes, ma'am. क्योंकि यही होता है, व्हेन यू गेट अ प्रोजेक्ट यू शुड नेवर गो, मतलब यू शुड हैव अ जनरल आइडिया कि हमें क्या करना है, बट यू शुड नेवर गो इन कि हमें यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, अनलेस यू नो कि ये अवेलेबल होता है. You should go through brochures and catalogs and see क्या क्या अवेलेबल है, because maybe every few months, every 6 months कुछ नया आ जाता है. So you look, go for market surveys, आप देखते हो, shops पे जाते हो, then you maybe find something that you feel suits best for your project. So do that first, उसके बाद concept सोचना. Yes, ma'am.